This is Wide Angle with Ashok Vyas. So then it appears like a risky area yeah, to work on. that's why I have 2,000 families all over India, those who are placed in area wherever there is some urbanization or some express highways are being built, or so we have placed our people to find out. Looks like the way you are operating, it's very a little bit complicated in a way, and looks like it involves various layers of understanding human beings, area, operations of different kind. But let me come back to the point where you felt the need of establishing a museum. Why you felt it is required, and in what way it has served that objective? And also allow me to add that you are also visualizing another 700 crore. 700 to 800 crore worth of museum, yes. The building itself is going to be 150 crores. Sir, basically why I made the museum, basically the museum was my retirement plan. And when I was visiting for the last 19 years all around the world, every country had the museum. Unfortunately, I own the first private mineral museum in the world through a studio I am telling, and first mineral museum of the India, whether in a government capacity or private capacity. So I used to feel very bad when somebody used to ask, do you have any museum in India of minerals? So I used to say no. So my retirement plan was to make museum, but I was so much bombarded with the question and I was so much fed up to say no. So I thought, let me draw a line where I can display some Indian minerals. Then I started collecting from globally also. So I thought, let the people come and let the kids they come and they should know that कि भारत की संपदाओं में ऐसी भी चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं. और let me tell you, when you are asking other questions, see, our country is very organized one way. See, whether we perform or don't perform, that is a different thing. Every district has a district mining officer, whether there is a mining or not. Every district has a geological, one geologist. So we are very much organized, whether we perform or not perform. So it is not difficult at all. And through satellite pictures, now the technology is so strong, through satellite pictures, we know every deposit mostly. There are maybe few exceptions, but basically there is a data with the government of India, with every country, with every state, that what we produces, what are the deposits lying where. So I wanted to make the government also aware. Same way I wanted to make the surrounding also aware, because when there is a road digging or they are digging well, so they used to get minerals. Sometimes the minerals can be $100,000 and they used to crush because of their ignorance, not awareness, the value and all that. So by making this museum, at least in the Maharashtra state, I created the awareness. Now the people know Gargoti has value, and sometimes I pay 7 to 10 lakh rupees for a small piece to a miner, the guy who brings it to me. Some people think that it is not having any value. But unless I don't teach them, unless I don't educate them, unless I don't tell them value, they are not going to hunt for it. So that's why at least we have trained 2,000 people around India. They hunt every day, they go and they get the results, and they are living a very good life. Very, very good. And let's talk a little bit about the word Gargoti and its relationship with Sai Baba. See, Gargoti in Marathi, they call it, Gar means ठंडा, गोटी means गोटी, ठंडी गोटी. और अगर आप इसके सृजन की तरफ जाएं तो they are the trap rock of volcanoes, and in especially Deccan Plateau, Maharashtra area, that was volcanic zone 65 million years ago. There are two theories for the dinosaur to vanish. One theory is that in Deccan Plateau there was an eruption of the volcanoes in a very huge state. So the global warming happened and the dinosaur died. Second theory was some big meteorite fell, and because of that global warming happened and they went away. Now coming back to Gargoti. Gargoti meaning they refer to a flint stone in the civilized way, and in Marathi the expression used Gargoti like something wrong, beyond any economical value, in a negative way. जैसे हम with due respect to you, जैसे लोग कहते हैं ये आदमी नालायक हो गया, he is a useless. So the reference used for Gargoti in Maharashtrian language is
Rog, useless. But I like that name and I wanted to connect with Baba कि यदि आप अपनी श्रद्धा और लगा दें किसी चीज़ में तो गारगोटी भी हीरे को पीछे कर सकती है. And I have sold, which I call Gargoti, 1.25 CR. And I told the government of India, it came in all the leading papers, magazines and all that. I bought some piece for 55 lakhs officially and sold for 1.25 CR. So why I share this? Because India, still people are not aware that what India has to offer. So I have to disclose everything so the people at least find it lucrative to work with Gargoti or lucrative to work with the minerals if they find something new, and that can be worth even billions. I am just talking about million or few 100,000. Coming back to Baba, how it was connected with Baba, when I started working in Gargoti and in this field, since I told you I was 17-year-old, since then I got devoted with the Gargoti, and there is definitely a divine, there was a definitely a divine bond between my work and the Gargoti. Though one may not know Sai Baba, or maybe I went first time to Shirdi 86, like coming back to your question, I didn't visit Sai Baba, but Sai Baba was always nurturing me. He was always guiding me. Even with my hobby, with my passion, with my museum also, he was always there and he always introduced with his miracles. So I often used to ask, I am an aeronautical engineer, I belong to UP, I was never trained for it. How come Baba has put me on a different path? So one day I was working, one lady came, she was a general manager's Bank of Maharashtra's mother-in-law. She said, are you aware that Baba gave Gargoti to someone? I said, no. Said, my grandmother got the Gargoti from Baba's hand. wow. Then I got a goosebump. I said, how come? Said, you must ask people, they must be knowing. So I just related in the entire world, so far whatever the discoveries has been done, Ahmednagar, where Shirdi is the part of Ahmednagar, Ahmednagar is the richest place where these Gargotis are found. Your Patterson, New Jersey is the another place where these Gargotis are found. I mean, they call it zeolites, we call it Gargoti in the Marathi language. So this is the relation, and I retired and settled in Nasik because of Shirdi Sai Baba. I became trustee because I am the first North Indian and first Fauji to become a trustee. So I feel all these miracles which Baba did in my life, and it is all because of Baba. And once again I'll repeat, कि ये लोहा बाबा के पारस अस्परस से ही आज यहाँ बैठा है, और जो कुछ भी मेरी छोटी मोटी अचीवमेंट है, it is all a tribute to Baba. I want to do more for the society, more for the Baba, more for the Baba's devotees. So at least I can make my life worth. Wonderful. So we are talking to K.C. Pandeyji, and he's full of Baba, if I say that way. When I say full of Baba, he's full of love for one and all, and he's trustee of Shirdi Sai Sansthan, and he's founder and owner of Superb Mineral India Private Limited. India Private Limited, and he has also established Gargoti Mineral Museum. If you go to that museum, which is somewhere in the Sinnar, and it's an industrial area. Yeah. And as you enter, you feel you have come to a different place, not like the surroundings from where you have entered. And there is a wonderful form of Bharat Mata that welcomes you there. Yes, sir. Now, tell me how the idea of having the form of Bharat Mata came, and also why not Shirdi Sai Baba there? See, first of all, why Bharat Mata? I wanted to pay a tribute to Mother India because I carried the flag all around to the globe with the Indian minerals, which I deal with. I told you minerals are of many types. My minerals were very less known in the entire world. Even today in India, very less people know about it. I wanted that, so when somebody comes to see my collection, he should pay a tribute to the Mother Earth and Mother India first. And especially when I was designing the museum, Baba gave me a little guidance that you make Mother India in a little height. So when every person comes and visits your museum, when he sees the Mother India, at least उसका सीना चौड़ा होना चाहिए, उसका चिनअप होना चाहिए. और मैं एक फ़ौजी होने के नाते हमेशा मुझे फ़ौज में जब ट्रेनिंग मिलती थी परेड की, तो वो चिनअप. तो हम यही चाहते थे कि जब कोई भी भारतीय या कोई भी व्यक्ति आए और भारत माता को देखे, तो वो अपने आप को गौरव
गौरवान्वित महसूस करे और सर नीचा ना करे, और वो एक संदेश देने में बहुत कामयाब हुआ। दैट वर्क वेरी वेल, एंड एवरी स्कूल किड्स और हूवर कम्स वो देख के, और रियली जब सर ऊंचा करते हैं। ऊपर मैंने मैपोरियम बनाने की कोशिश की जो बोस्टन में है, लेकिन उस समय उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि मैं डोम को घुमा सकूं, बट स्टिल अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इट्स आधा ग्लोब बना हुआ, उसमें कई देशों के मैप बने और मदर इंडिया का मैप सामने है। तो विजनरी होना और विजन को एग्जीक्यूट करना कैसे संभव होता है कुछ मनुष्यों के लिए, उसके बारे में उनकी ओर से हमें अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं। मुझे लगता है के सी पांडे जी की तरफ से हमें साईं बाबा का नाम सुनाई देगा। और अब चलते हैं, जो साई चरित्र का पहले उल्लेख आपने किया था, आपने जब पहली बार साई चरित्र का अध्ययन किया तब जो अनुभूति रही, और अब जब कभी आप अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या कुछ अंतर है? अशोक भाई, अब तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अब तो साईं रोम रोम में बस गया है, और इतना बस गया है कि इस अकिंचन को एक दिन, मतलब आपके पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली, अदरवाइज आई शेयर, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन भी शिरडी में दिए हैं। तो बेसिकली अब तो जीवन में यह है कि आप करते रहो, चलते रहो जो काम बाबा ने दिया है, बट एक बार अगर स्पर्श हो जाता है तो फिर कुछ जीवन में बचता नहीं है। बट जीवन जीना है, कुछ करना है, क्रिएटिविटी बाबा ने दी है। और मैं ये आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि बाबा किसी रूप में भी आ सकते हैं, आपके गुरु के रूप में आ सकते हैं, आपके मेंटर के रूप में आ सकते हैं, आपके गाइड के रूप में आ सकते हैं। तो एक गुरु होना बहुत आवश्यक है जीवन में। ये हमारे शास्त्रों ने सृष्टि जब से हुई है तब से कहना शुरू किया कि भाई गुरु चाहिए, और गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव, गुरु की महत्ता को बताया है। साईं बाबा के रूप में कोई भी आपका गुरु हो सकता है। साईं बाबा इज नॉट लिमिटेड टू वन स्टैचू और वन आकृति और वन सेंट। जो आपका गुरु है, जिसके अंदर देवत्व है, वही साईं है। तो आपने कहा है कि उसके रूप अनंत हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उसको कहा गया। तो ब्रह्मांड में पूरे कण कण में व्याप्त है वो। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो भगवान के द्वारा बनाई चीज़ें हैं, ईश्वर के द्वारा, वो अनंत हैं, उसकी रचना अनंत है। जो हम चीज़ें बनाते हैं वो सब सीमा पहले बांध देते हैं। चाहे अमेरिका कितना भी बड़ा हो, उसकी सीमा है, कनाडा कितना भी बड़ा, उसकी सीमा है। तो अनंत सिर्फ उसी के पास है। और हमारे साईं अनंत हैं, अनंत रूप में हैं, चाहे उनको गुरु आप कहें, इसीलिए उनको लोग गुरु माँ कहते हैं, द्वारिका माई कहते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ कि साईं साक्षात दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं, और चाहे आप उनको ईसा मसीह कहें। उन्होंने खुद ही हमारे यहाँ शिरडी में देखिए, जब मंदिर का कोई चीज़ बनती है तो हाँ इस्लामिक चिन्ह भी रहता है, क्राइस्ट भी रहते हैं, ओंकार भी रहता है, ओम भी रहता है। जितने भी चीज़ें हैं धर्म के सिंबल हैं, सब हम लोग शिरडी साईं ट्रस्ट बनाते हैं। वी डोंट कैरी वन सिंबल। तो वो हमें बाबा ने सिखाया है, शायद वो संदेश लेके हम चलने में कामयाब अभी तक हुए हैं, और आगे भी चाहेंगे कि चलता रहेगा। पांडे जी, कुछ जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं सुनते सुनते। तो एक तो जो आपने बताया कि आप पहली बार शेयर कर रहे हैं पब्लिकली कि बाबा के साक्षात दर्शन होने वाली बात, वहाँ हमें थोड़ा और ले जाएं अगर। मैं यहीं अमेरिका आया हुआ था, हमारे एक होस्ट थे, इंडियन होस्ट थे। उनके पास एक बहुत सुंदर नववर्ष की ग्रीटिंग थी, दिवाली की ग्रीटिंग को लेके। इतनी सुंदर बाबा की फ़ोटो मैंने नहीं देखी ग्रीटिंग्स में। तो जिज्ञासा हुई, मैंने वो ग्रीटिंग्स उठा ली। तो हमारे होस्ट ने कहा कि पांडे साहब, आपको मालूम है जिस महामानव ने ये कार्ड भेजा है, उनको साईं बाबा के साक्षात दर्शन हुए हैं। उनकी पत्नी भी बैठी थी, मैंने शेयर किया। हमने कहा कितनी बड़ी तपस्या उनकी होती होगी जिनको ईश्वर साक्षात दर्शन देता होगा। हम लोग तो चाहते हैं कलयुग में कि भगवान हमारा स्लेब बन के रहे, जब चाहे हम उसको देख लें, जो चाहे उससे मांग लें, कुछ करना ना पड़े। हमने कहा हम लोग कभी नहीं दर्शन कर पाएंगे। अशोक जी, इसी के साथ मैं गया, स्नान किया, चूँकि फ़्लाइट से आया था, खाना खाया, सो गया। और सोने में मैं बाबा का साक्षात दर्शन देख रहा हूँ शिरडी में हूबहू। कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो जनेऊ और धोती वोती लगा के मैं अंदर गया। पुजारी मुझे पहचानते, बाबा की मूर्ति हट गई, बाबा स्वयं बैठे और सामने मंगल कलश रखा। जब मेरी निद्रा टूटी, मैंने सुबह अपने होस्ट से शेयर किया, और लगभग 1.5 साल तक मेरी पागल जैसी स्थिति बनी रही।
मैंने कहा बाबा स्वप्न तो अच्छे और बुरे सब आते हैं, अगर आपने वाकई दर्शन दिए हैं तो इस दर्शन को मैं नहीं मानूंगा। अगर रियली आप मुझसे स्नेह रखते हैं और वो उस रात की घटना वो स्वप्न वाली सही है तो सामने आओ तब जानूं। और 1.5 साल लगभग हो गए, एक अर्धविक्षिप्त अवस्था में मैं जीता रहा जब उसको याद करता था स्वप्न को। तो एक दिन मैं काकड़ आरती करके, दिसंबर का महीना था, निकला और वहाँ पारायण कक्ष है जहाँ लोग बैठ के साईं चरित पढ़ते हैं। वो साइलेंस जोन है तो अभी छोटा, आपके इस स्टूडियो के बराबर है, लेकिन फिर भी आप जब कभी जाइएगा वहाँ जाइएगा, वहाँ लोग चुपचाप बैठते हैं, वहाँ बोलना मना है। वहाँ जैसे लोग जो आपने कहा दर्शन नहीं हुआ, तो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ जब आपको कभी अच्छा दर्शन ना हो तो वहाँ जाइए, बैठ के साईं चरित पढ़िए और देखिए बाबा आपकी पुस्तक में ही आपको दर्शन दे देंगे। मैं उस दिन गया, उस दिन पारायण कक्ष खाली था, मैं गया, वहाँ बाबा की एक 6 फुट की तस्वीर पड़ी है, वहाँ प्रणाम किया और जब पीछे मुड़ के देखा, साक्षात बाबा, जो बाबा का आप ड्रेस देखते हैं, ना बहुत साफ, ना बहुत उजला, ना बहुत मैला, उसी ड्रेस, उसका गाड़ी, हाथ पाँव उनके ठीक लेकिन साधारण नहीं, असाधारण हाथ पाँव उनके, वही पटका, वही रंग, वही रूप। और मेरे उस समय पैसे भी नहीं थे, मेरा एक पीए था, मैंने उसको बोला यार तेरे पास कुछ पैसे हैं, तो बड़े अनमने ढंग से ऐसे हाथ से वो 100 रुपया निकाला और सॉइल्ड नोट थी वो। भाई साहब मैंने उस 100 रुपये की नोट ऐसे सीधी की, देखिए मेरी तंद्रा बध गई, जैसे मैं एकदम हिप्नोटाइज हो गया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आनंद ले रहा हूँ बाबा का पूरा एकदम, हम भी गदगद, वो भी गदगद, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये सब चल रहा है, एकदम यंत्रवत चल रहा है। मैंने 100 की नोट सीधी की। अब देखिए मैं चाहता तो नोट ऐसे भी दे सकता। मुझे वो जो काकड़ आरती में पढ़ते हैं, तुझे काय देव कि तू जगन्नाथ है, तो ऐसे मैंने दिया। उन्होंने हंस के वो उठाए और वहीं विभूति की एक वो पड़ी रहती, उन्होंने 3 उंगली डाली, मेरे माथे लगाए, इधर किया, मैंने प्रणाम किया। मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही थी जो मैं बोल नहीं पा रहा था कि बाबा मेरे लिए आदेश क्या है, जैसे आप कहते ना कि, तो इट वॉज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। साक्षात बाबा खड़े हैं, तू आदेश क्या मांग रहा है? लेकिन मन में जो है, आपसे ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ, प्रणाम करके यंत्रवत मेरे पाँव भी आगे बढ़ गए और जैसे मैं एक सीढ़ी नीचे उतरा, 2 स्टेप है वहाँ पे, तैसे मैंने, अरे बाबा, ही वॉज नॉट देयर। और जब घर में मैंने शेयर किया, मेरी धर्मपत्नी मुझे कहती है कि नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन कलयुग में हम छोटे लोग हैं, हमें जो शिक्षा मिली है कि भगवान का भजन कीर्तन, भगवान के गुणगान से ही हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो हम इसलिए इस बात को पब्लिकली नहीं, धीरे धीरे, जिनको मैं पात्र समझता था कि जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जिनको बाबा के याद करके आंखें नम हो जाती हैं, मेरी हमेशा नम हो जाती हैं, तो ऐसे पात्र लोगों को मैं सुनाने की कोशिश करता था कि बाबा से वो जुड़ें, बाबा को समझें, सत्य को समझें, साईं को समझें, भगवान को समझें। तो आज आपके इस आई फॉर इंडिया के माध्यम से आज ये मेरी, पता नहीं कैसे आपने साइलेंस तोड़वाई दिया। और ये कभी आप मुझे सीडी देंगे, अपनी वाइफ को दिखाऊंगा तो मुझे डांट भी पड़ेगी। तो ये भी अच्छी बात है कि बाबा के प्रति प्रेम होने के साथ साथ पत्नी की डांट का डर बना रहे, ये भी बाबा की कृपा है। तो क्योंकि वो डर न होने से भी मार्ग से च्युत होने की संभावना रहती है। बातचीत को विराम देने की तरफ बढ़ते हुए, शिरडी साई बाबा का मंदिर ऐसा है कि न केवल भक्तों को आकर्षित करता रहा है, बल्कि ऐसा शायद ही कोई मंदिर होगा जहां 10 दिन में 11 करोड़ 60 लाख जितने चढ़ावा कैश आ जाए। कैश और बहुत सारे गोल्ड अलग है। हाँ, तो आप वहाँ के ट्रस्टी हैं। एक तो हमारे दर्शकों को यदि आप बताएं कि कितने ट्रस्टी वहाँ के हैं। नंबर 2, क्योंकि जब इतना चढ़ावा आता है तो आप पर ये उत्तरदायित्व होता है कि उसका ठीक ठाक ढंग से उपयोग किया जाए। इसमें भी बाबा की कृपा से आपको क्रिएटिव थिंकिंग करना होगा कि कहाँ कहाँ लगाएं, क्या क्या प्रकल्प हो। बहुत संक्षेप में यदि इस बारे में आप कुछ बताएं। चढ़ावा आने का कारण यही है कि वो समझते हैं कि उनका हर एक नया पैसा जो हमारे पास आता है वो सदमार्ग में लगता है, लोक सेवा में लगता है, मानव सेवा में लगता है, गरीबों की सेवा में लगता है। दूसरा, आप शिरडी अगर गए हैं, याद होगा आपको, कोई आपसे पैसे के लिए प्रेरित नहीं करता है कि आप दान दीजिए। हम लोग 2-4 जगह खाली दान पात्र भी रखते हैं, ये भी नहीं, बल्कि लोग शिकायत करते हैं। तो ये स्वयं की प्रेरणा से, बाबा की प्रेरणा से लोग स्वयं प्रेरित होकर वहाँ दान देते हैं और ये लोगों की आस्था का सबसे बड़ा परिचायक है। वहाँ हमारे पास 3 अस्पताल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, हमारे पास शिक्षा संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से लेकर टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, ये सब हैं। और हम लोग ऐसे तमाम सारे लोगों की मदद करते हैं जिनकी आर्थिक आवश्यकता
रहती है असाध्य रोगों के लिए, किसी क्रोनिकल पेशेंट हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, और कोई ऐसा मेरिटोरियस स्टूडेंट है या जिसको हमारी आर्थिक सहयोग से उसके जीवन में कुछ प्रकाश आ सकता है, तो ट्रस्ट के कुछ ऐसे नियम हैं। और हमारे ट्रस्ट में टोटल 14 ट्रस्टी हैं। हमारे साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, वो हमारे साथ भी ट्रस्टी हैं। कई MLAs हैं, कई एक्स MLAs हैं। तो एक गौरव है इन सब लोगों के साथ सर्व करने का मौका मिला एक फ़ौजी होने के नाते। और सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे कार्यों में कैसे शिरडी के आसपास के लोगों को और कैसे जो विश्व से बाबा के भक्त आते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा हम मुहैया करा सकें। हम लोग एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, कनेक्टिविटी भी वहाँ बढ़ती जा रही है। ठीक है, हिंदुस्तान एक पॉपुलस देश है और बहुत शीघ्र ही हम लोग तमाम सारी व्यवस्थाएं सुसज्जित कर जाएंगे। और आपके माध्यम से साईं भक्तों को हम प्रणाम कहते हैं, और बाबा सबके जीवन में कल्याण लाएं, सबको सद्मार्ग से जोड़ें और विश्व का कल्याण हो, विश्व शांति से जिए और रहे, और आतंकवाद का एकदम समूल नष्ट हो जाए। यही हमारी प्रार्थना आपके माध्यम से। तो आपकी जो प्रार्थना है उसको बाबा जरूर सुनेंगे और पूरा करेंगे, और बाकी सबके हृदय से भी उसी प्रकार के भाव सहज ही जागृत होते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट पीस, वी ऑल डेफिनेटली लव दिस सेंस ऑफ वननेस wherein we can palpably feel the flow of love coming from all the directions, and it so happens that Baba is like a center from where this pure love is flowing for one and all, and bringing that love with us here in our studio. K.C. Pandey, trustee of Shirdi Sai Sansthan, was with us. So nice of you. Thank you very much. Thank you, sir. Om Sai Ram. Om Sai Ram. This is Ashok Vyas. This is Wide Angle with Ashok Vyas.